Assalamu alaikum beta. We will study extraction of aluminium in this video. The chief ore of aluminium is bauxite, that is the main ore, ठीक है, from which we are extracting aluminium. So hydrated aluminium oxide is bauxite, Al2O3.2H2O. Cryolite is sodium aluminium fluoride and that is secondary ore of aluminium. ठीक है, cryolite is Na3AlF6 और sodium aluminium fluoride. Corundum is aluminium oxide. ठीक है, aluminium is the most abundant metal in the earth crust, about 7.4% by mass, followed by iron. Iron is the second most abundant element in the earth crust. Okay, now step 1 during the extraction of aluminium from its ore, that is bauxite, is dressing of the ore or the concentration of the ore by Bayer's process. Here we are using chemical leaching, that is Bayer's process for the concentration of ore. ठीक है, that is removal of impurities from the ore. Conversion of impure bauxite to sodium aluminate. पहले हम क्या करते हैं, impure bauxite को sodium aluminate में convert करते हैं and this alumina, that is Al2O3, is amphoteric oxide, that is it can show acidic as well as basic behavior. Here it is showing acidic behavior by reacting with the base, that is NaOH, base or alkali, anything you can say, at 150 to 200 degrees Celsius temperature, and it is being converted into salt plus water. Neutralization reaction is being taking place here, that is sodium aluminate is being formed and water molecules. ठीक है, now function of sodium hydroxide or caustic alkali. What is the function? Why are we using this NaOH here? Bauxite reacted with concentrated solution of NaOH under pressure for 2 hours as the first step in obtaining pure alumina. Now why we are getting pure, we have to get pure alumina in order to remove the आयरन ऑक्साइड दैट आर इम्प्योर सॉलिड ऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड. ठीक है, आयरन बीइंग द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ऑलवेज आयरन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है एल्यूमिनियम के साथ. द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइड मेनली Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड remain unaffected with concentrated NaOH since impurities are not amphoteric. Iron 3 oxide is not amphoteric in nature, hence it does not react with NaOH. ठीक है, bauxite being amphoteric reacts with the base forming salt, sodium aluminate and water, hence impurities are separated out. ठीक है, इनको फिल्टर आउट कर लेंगे. Therefore caustic alkali is added to bauxite ore during purification of bauxite. Now conversion of sodium aluminate. अब हमें sodium aluminate मिल गया, आयरन 2 ऑक्साइड को हमने रिमूव कर दिया, आयरन 3 ऑक्साइड वी हैव रिमूव्ड. ठीक है, बाय फिल्ट्रेशन. कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अब क्या करेंगे बेटा, दिस सोडियम एल्यूमिनेट वी डिजोल्व इन वाटर एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू NaOH एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये जो NaOH बना है बेटा, इट कैन बी रीयूज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फिर से रीयूज कर सकते हैं इस स्टेप में. NaAlO2 और सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड विद वाटर एंड क्रिस्टल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड टू इट टू फर्दर प्रेसिपिटेट आउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अ प्रोसेस कॉल्ड सीडिंग. इसको सीडिंग कहते हैं. थोड़ी बहुत क्रिस्टल्स ऐड कर देते हैं इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रेसिपिटेशन. ठीक है, और accelerate the precipitation. After agitation, the insoluble aluminum hydroxide is filtered out and dried. Conversion of aluminum hydroxide to pure alumina. Heat कर देंगे इसको, water molecules remove हो जाएंगे and we will get pure alumina from aluminum hydroxide on heating at temperatures above 1000 degrees Celsius. ठीक है, precipitated aluminum hydroxide is ignited to give pure alumina. अब ये pure alumina मिल गया है. अब बेटा next step is the concentrated ore को ऑक्साइड बनाना. conversion of concentrated ore to its oxide, and this step is not necessary during the extraction of aluminium. Why? Because it is already an oxide. aluminium oxide ही तो है बेटा, already an oxide. So now we will move towards the step 3, that is reduction of metallic oxide to its metal. अब metallic oxide से metal बनाना है, reduction करना है, and aluminium being one of the 5 active metals. ठीक है, one of the first 5 active metals cannot be reduced by using common reducing agents. ठीक है, hence it undergo electrolytic reduction and special electrolytic reduction, that is Hall-Heroult process is in your syllabus. ठीक है, now electrolyte used here is इलेक्ट्रोलाइट. इसमें देख ली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फ्यूज्ड एल्यूमिना, द एल्यूमिना दैट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, प्योर एल्यूमिना थ्रू बेयर्स प्रोसेस. ठीक है, 1 part ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, 3 parts ऑफ क्रायोलाइट, दैट इज Na3AlF6, दैट इज द सेकंड ओर ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, एंड नेक्स्ट इज फ्लोरिस्पार, दैट इज CaF2, 1 part ऑफ फ्लोरिस्पार. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार? वाई वी आर यूजिंग दीज बोथ एज इलेक्ट्रोलाइट्स अलॉन्ग विद एल्यूमिना? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वी विल डिस्कस इट. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोड्स क्या क्या लिए हैं, रेक्टेंगुलर स्टील टैंक विद कार्बन लाइनिंग. कैथोड क्या है बेटा, कार्बन लाइनिंग, गैस कार्बन ऑफ द सेल. एनोड इज थिक कार्बन रॉड ग्रेफाइट अटैच टू द कॉपर क्लैम्प्स डिपिंग इनटू फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज फ्यूज्ड, दैट मीन्स इट इज मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर. अक्वस इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है. टेम्परेचर इज 950 डिग्री सेल्सियस एंड करंट इज 100 एम्पियर्स एट 6 to 7 volts. ठीक,
इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, क्या क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो रहा है, आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब देखो बेटा इसमें Al2O3 में से कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे, एल्यूमिनियम 3+ एंड ऑक्साइड आयन। Na3Al F6 कौन कौन से देगा, Na+Al3+ एंड F- दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम कैटाइंस एंड फ्लोराइड एनाइन। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड दैट इज फ्लोर स्पार क्या देगा, कैल्शियम एज कैटाइन एंड फ्लोराइड एज एनाइन। The cations that are being produced from all these the constituents of electrolytes are sodium cation, aluminium cation and calcium cation. Okay, तो कैथोड के पास all three will migrate towards the cathode but the least reactive will be discharged. ठीक है, और least reactive इन तीनों के केस में is aluminium. So aluminium will be discharged by getting 3 electrons, that is taking 3 electrons and getting reduced at cathode. Okay, and this aluminium will be deposited on the cathode, that is the नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, एट एनोड, एनोड पे अब देखो कौन कौन से आयंस जाएंगे, हाउ मैनी नेगेटिव आयंस आर देयर, दैट इज 2 ही नेगेटिव आयंस हैं, फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, फ्लोराइड एंड ऑक्साइड आयंस आर द ओनली नेगेटिव आयंस, 2 नेगेटिव आयंस आर देयर एंड ऑक्साइड बीन्स लेस रिएक्टिव विल गेट डिस्चार्ज। ठीक है, दोनों ही माइग्रेट होंगे, डिस्चार्ज कौन होगा, ऑक्साइड आयन। ठीक है, एंड oxygen gas will be released at anode. Aluminium 3+ ions are discharged in preference to this and this. Why? Due to its lower position in the electrochemical series. ठीक है, so now products formed at the cathode will be pure aluminium metal and at the anode will be oxygen gas, and along with oxygen gas some amount of carbon monoxide and carbon dioxide will also be produced. Why? Because this electrodes are made up of carbon only. ठीक है, and very high temperatures are being used during this process. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बन का भी क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है, इन इलेक्ट्रोड्स के कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन गैस इज ऑलरेडी देयर ना एट द एनोड, सो ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ रेशियो बना लेते हैं। तो अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम। ठीक, दिस इज द कैथोड दैट इज गैस कार्बन लाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट इज एल्यूमिनियम एंड क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार। ठीक है, यहाँ से मोल्टेन एल्यूमिनियम इकट्ठा हो रहा है, एनोड इज द कार्बन रॉड्स, कैथोड इज ऑल्सो द कार्बन रॉड। ठीक है, गैस कार्बन लाइनिंग, चार्ज कंट्रोल लैम्प यहाँ पे लगा है। नाउ अब देख लो सारा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक, फ्यूज्ड एल्यूमिना इज इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिना इज हाईली स्टेबल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हेंस एल्यूमिना कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिकली ओनली एंड नॉट बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एल्यूमिनियम इज द 5th एक्टिव मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, 5th नंबर पे है, देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और द reactivity series of metals. ठीक है, difficulties faced during electrolytic reduction of alumina, what were the difficulties that were being faced and how they can be overcome. ठीक है, fused alumina is almost a non-electrolyte and has a melting point around 20-50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कब होता है, जब हम मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, डेट इज मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, या तो aqueous फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ही कितना ज़्यादा है, 20-50 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट इज। ठीक है, तो इतना हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिना क्या होने लगता है, डायरेक्टली वेपराइज होने लगता है। ठीक है, सो प्योर एल्यूमिना इज ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो हम क्या कर रहे हैं बेटा इसमें, एड इन ऑर्डर टू इनहेंस इट्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी वी आर यूजिंग cryolite and fluorspar. ठीक है, a large amount of electrical energy is required to liberate aluminium from Al2O3 and maintain the electrolyte in the molten state at that temperature. The liberated aluminium metal, अब एल्यूमिनियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इज 660 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइज आउट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 20-50 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करना ही डिफिकल्ट हो, और अगर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर भी लिया इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करके, तो ये एल्यूमिनियम जो मेटल बन रहा है वो वेपराइज हो जाएगा, वोलेटाइज आउट हो जाएगा एंड गेट वेस्टेड एंड हेंस द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर हैज टू बी लोवर्ड। ओके, अब नाउ व्हाई फ्यूज्ड क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार आर एडेड टू द electrolytic mixture. So addition of mainly cryolite in a higher ratio and fluorspar lowers the fusion temperature of the mixture to about 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2050 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री तक लोअर कर दे रहा है। एडिशन ऑफ द क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार ऑल्सो इनहेंसेस द मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज्ड मिक्सचर। ठीक है, जो मोबिलिटी ऑफ आयंस को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट। ठीक है, जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, द मोर द मूवमेंट ऑफ आयंस, द मोर विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, so electrolytic conduction is directly proportional to the mobility or the movement of ions. ठीक, by acting as a solvent for the electrolytic mixture. ठीक है, thus cryolite in the molten state of subdivision dissolved aluminum oxide. Addition of cryolite enhances the conductivity of the mixture. The more the conductivity, the more the electric वो deposition of aluminium. Okay, effectively aluminium क्या हो जाएगा,
डिपॉजिट होगा, हैंस एक्सट्रैक्टेड। ठीक, सिंस प्योर एल्यूमिना इज ऑलमोस्ट अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंपाउंड इन द इलेक्ट्रोलाइट आर दस एल्यूमिना डेट इज Al2O3 Na3Al(F6). ये दोनों क्या हैं, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं। और एक नॉन एल्यूमिनियम कंपाउंड भी ऐड किया गया है, डेट इज CaF2 और फ्लोरिस्पार। ठीक है, CaF2 इज एडेड टू इनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ द आयन सिंस इट इज अ वेरी गुड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट। Now, Charles Hall in 1886 thus resolved the difficulties faced during the electrolytic reduction of alumina, and hence extraction of aluminium became simpler and consequently cheaper. पहले aluminium metal was very costly. Why? Expensive पहले क्यों था? क्योंकि aluminium का extraction ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि aluminium is the most abundant metal, but एज एन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट था। प्योर एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन ही बहुत डिफिकल्ट था इन सब की वजह से, क्योंकि इसका फ्यूजन टेम्परेचर एल्यूमिना का कितना है, 20-50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इतने हाई टेम्परेचर पे अगर मेंटेन कर भी लेते थे तो एल्यूमिनियम वोलेटाइज आउट हो जाता था, जो भी ऑब्टेन हो रहा था। तो चार्ल्स हॉल ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा। क्या करा, कैसे करा? ये दोनों ऐड करके टू द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर डेट इज क्रायोलाइट एंड फ्लोरिस्पार। ठीक है, क्रायोलाइट टू reduce the fusion temperature and fluorspar to enhance the ionic mobility or the electrolytic conductivity. Okay. A layer of powdered coke is sprinkled over the electrolytic mixture. Why? The layer of powdered coke prevents burning of carbon electrodes in air. अब देखो oxygen is already being produced at the anode ना, तो and the electrodes are containing carbon as the main element है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन विल रिएक्ट एट सच हाई टेम्परेचर्स डेट इज 950 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। एंड इसको ही प्रिवेंट करने के लिए हमने लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक, हालांकि कोक भी कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन अब यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन होता है, कोक ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन नहीं हो पाता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अनटच रह जाते हैं। ठीक है, एट द इमर्जेंस पॉइंट फ्रॉम द बाथ। मिनिमाइजेज और प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय रेडिएशन। हीट लॉस जो हो रही है रेडिएशन के थ्रू, उसको भी मिनिमाइज करता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर का। द ग्रेफाइट कार्बन एनोड्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही रहा था। ऑक्सीजन एवॉल्व्ड एट द एनोड, एस्केप्स एज अ गैस और रिएक्ट्स विद द कार्बन एनोड। द कार्बन एनोड इज देस ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच आइदर बर्न्स गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड और एस्केप्स आउट थ्रू एन आउटलेट दैट इज 2 कार्बन प्लस O2 gives 2 CO or 2 CO plus O2 gives 2 CO2 are the reactions. The carbon anode is hence consumed and renewed periodically after a certain period of usage. It is therefore preferable to use a number of graphite electrodes as anode instead of a single electrode. तभी यहाँ पे देखो बेटा series of electrodes लगाए गए हैं. Number of graphite electrodes are being used as the anode here. Okay. Electrolytic reduction of alumina is a continuous process. ये प्योर एल्यूमिनियम, ये जो प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के, वहाँ ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है. प्योर एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट सेटल्स डाउन. नीचे सेटल डाउन हो जाता है. इट इज पीरियोडिकली रिमूव थ्रू द आउटलेट और टैप होल एट द बेस. अब ये देखो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है आउटलेट के थ्रू. ठीक है, इस डेंसर है, नीचे कलेक्ट हो जाएगा. डेंसर देन द इलेक्ट्रोलाइट, इट विल कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द, ये जो भी आपका एपरेटस है. ठीक है, और फिर टैप आउटलेट के थ्रू हम नहीं कलेक्ट कर लिया जाता है. ओके, नाउ एल्यूमिनियम as the concentration of aluminium oxide falls, the resistance of the bath increases, indicated by a glow on the control lamp. ये जो कंट्रोल लैम्प है, दिस वन इज द कंट्रोल लैम्प, ये जलने लगता है. ठीक है, इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर कम हो गया है. एट दिस मोमेंट मोर एल्यूमिना इज एडेड टू द प्रोसेस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. एल्यूमिना फिर से ऐड कर दिया जाता है और प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है. अब देखो Na3Al(F6) एंड दिस फ्लोरिस्पार, ये तो वैसे ही एज सच रहेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये सिर्फ स्पेक्टेटर आयंस हैं. इनके आयंस सिर्फ स्पेक्टेटर आयंस हैं. इनके आयंस जाके सोडियम और फ्लोरीन, सोडियम और फ्लोराइड आयंस और कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस, ये सारे स्पेक्टेटर आयंस हैं. वाई? बिकॉज इनका ये डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, ये एज सच सोल्यूशन में रह रहे हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम ही चेंज होता है. एल्यूमिना का ही कॉन्सेंट्रेशन मेन चेंज हो रहा है, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मोर एल्यूमिना विल बी एडेड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड इज ऑलमोस्ट 99.5% प्योर एंड कैन बी फर्दर प्योरीफाइड बाय हुप्स प्रोसेस. अब हुप्स प्रोसेस सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि अगर फर्दर हमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है एल्यूमिनियम डेट इज बीइंग ऑब्टेन्ड थ्रू हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, तो उस हुप्स प्रोसेस यूज करेंगे. एंड दिस इज हुप्स प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यहाँ पे एल्यूमिनियम की कर रहे हैं. एंड इट इज़ फॉर रेफरेंस ओनली. अगर ये पूछ लिया जाए कि हाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव द 99.9% प्योरिटी, तो हुप्स प्रोसेस है. ठीक है, सिर्फ नेम भर का पूछ लिया जाएगा, उसके आगे नहीं. मेन दिस प्रोसेस, दिस मच इज इन योर सिलेबस ओनली. ओके.